Hello everyone, myself Uttam Kumar from Muzaffarpur, Bihar. I am recently completed my BSc Agriculture Honours from Mandan Bharati Agriculture College, Agbanpur, Saharsa, which are under Bihar Agriculture Sabal. I am recently clearing ICR entrance examination with social science, and my allotted university is National Dairy Research Institute, and my allotted course is Agriculture Extension Education. I am also clearing CUT PG entrance examination and taking admission of BHU in Agriculture Economics course. Today I am sharing all strategic and planning and book list which I prepared during the preparation of ICR entrance examination. In social science, there are two subjects. The first subject is agriculture economics, and second subject is agriculture extension education. For agriculture economics, we prepare 4 books. The first book is agricultural economics by S. Subbareddy. This is the fundamental book for agriculture economics. The second book is an introduction to agricultural social science by Subhash Chandra. This is a combined book for social science. The third book is economics of farm production and management by V.T. Raju. This is the book for farm production and management. The fourth book is objective agriculture economics by K. Nirmal Kumar Ravi. For agriculture extension education, the first book is extension communication and management by G.L. Raya. This is the fundamental book for agriculture extension education. The second book is instant extension education by Shruti ma'am. This is the one-liner book, and most students prefer for this book. The third book is multiple choice question in agriculture extension education by Sunil Viji sir. This is the objective book, and try to solve this book. For general agriculture, we prepare third book. For general agriculture, I am preparing 3 books. The first book is a competitive book of agriculture by Neem Sunda. The second book is Fundamental of Agriculture by Arun Katyan, and the third book is Objective Agriculture by R.S. Kantaba. इसके अलावा मैंने कुछ YouTube चैनल को भी प्रिफेयर किया था, जैसे कि इस चैनल जैसे जो विशाल कुमार एग्री सोलर साइंस बाय विशाल कुमार उतना होता है. फॉर जनरल एग्रीकल्चर आई एम प्रिपेयरिंग अ कंप्लीट बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नीमा सुंदा. द सेकेंड बुक इज फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कत्यान, एंड थर्ड बुक इज ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर. आई एम ओनली कवर दोज टॉपिक which are mentioned in my syllabus in these 3 books for general agriculture. Besides this, I am preparing this YouTube channel for some concept. इसके अलावा हम विशाल कुमार यादव सर से टेस्ट सीरीज भी लिए थे, और उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए थे, और सर ने अच्छे क्वेश्चन डाले थे, जिसके कारण मेरे पेपर बहुत बढ़िया से हो पाया था. इसके अलावा हमने लगभग 5 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया था. मैंने सोचा था कि लगभग 7-8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कारण नहीं हो पाया था लास्ट में. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है. इसके अलावा अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस ही बताता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या, और आप सब चीज़ों को नहीं पढ़ना होता है. तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को निकालिए और उसे अपने टेबल पर रखिए और उसी के साथ पढ़िए, क्योंकि ICR के एग्जाम में सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है. ये हमने क्वेश्चन में देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद, और मेन एग्जाम में भी देखा था कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आ रहे थे. इसके अलावा बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का, तो आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन पे थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन. और जनरल एग्रीकल्चर को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन उससे भी आते हैं. यहाँ पे जो तरीका है
और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से लगभग 55 से 60 क्वेश्चन पूछते जाते हैं और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से 45 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको रिवाइजिंग ज़रूरी है, हर बुक का रिवाइज ज़रूरी होता है और नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि अब लास्ट टाइम में आप जब बुक में जाओगे तो लगेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना के रखे हुए तो लास्ट टाइम में रिवीजन हो पाएगा और लास्ट टाइम में रिवीजन ज़रूरी होता है। अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कन्फ्यूज रहोगे। और यहाँ पे आपको इस बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है। अगर हम गलत किए तो 1 नंबर हमारे जाएंगे और 1 नंबर से आपके रैंक आगे पीछे हो सकती है। तो इस तरह से अपने को पेशेंस बना के रखना है और तैयारी करते रहना है। जितना हो सके उतना अच्छा से मोटिवेट होकर तैयारी करना है और डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि इसमें कोर्स में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें इस बार तो सीटें भी बढ़ा दी हैं, लगभग 350 के सीटें कर दिए हैं। तो आप इस क्षेत्र में आए, भले इसमें बच्चे कम जाते हैं, कंपटीशन बहुत कम है और सब्जेक्ट की अपेक्षा, तो आप यहाँ आए और टेस्ट सीरीज विशाल सर का ज्वाइन करें इस तरह से। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम टाइम के टाइम, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करो तो क्वेश्चन छूट जाएगी आपकी। तो उस तरह से कितना समय किस क्वेश्चन पर देना है वो सब ध्यान में रखना चाहिए जो लास्ट टाइम के लिए। और हाँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट बुक बताया हमने, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय एस सुब्बारेड्डी, दिस इज द फंडामेंटल बुक। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बस इस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए बस यही पढ़ लें और काफ़ी है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप थोड़ा सा एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्रा का बुक प्रीफर कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन की एक एक लाइन आपको रटा होना चाहिए, कम से कम उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक एक लाइन हर एक अच्छे से दिया हुआ है और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको एग्जाम में। और प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन वहाँ पे बन पाएंगी। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी और आप अच्छे रैंक ले पाओगे और JRF के लिए भी आप एलिजिबल हो पाओगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग और फॉर इस यूट्यूब चैनल विशाल कुमार यादव सर के द्वारा चलाया जाता है, जो इस पे नेट JRF और PG PhD के लिए सभी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं और टेस्ट सीरीज भी सर करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जूनियर के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर